5% بھی مریض کے بچنے کے چانس ہے تو لیٹ ہم ڈائی ود کمفرٹ ان اور ہاسپٹل۔ ان کو اگر پیسوں کی میں یہ گارنٹی کر کے جاؤں گا کہ پیسے میرے مرنے کے بعد بھی ان کو ملیں گے، میرے بچے نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بچوں کو جانتے ہیں، اگر یہ ان کو فون کریں گے کتنے ہمیں ضرورت ہے تو مجھے یقین ہے وہ بھیجیں گے، لیکن میں خود بھی اتنا کر جاؤں گا کہ ان کو پیسے مینجمنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ میں سٹرکچر ضرور بنا رہا ہوں۔ اب ہمارا جو مین ٹاسک ہے، چونکہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت زیادہ فنڈز کی بھی ضرورت ہے۔ صرف زمین جو ہے ہم نے 50 کروڑ روپے میں خریدی ہے۔ جو آپ نے اہمیت اور کیئر اپنی فیملی کو دینی ہے، وہ اہمیت آپ ان بچوں کو دیں گے، ان اپنے مریضوں کو دیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کی جو ہے بچوں کی صحت یابی بھی لوگوں کی بہتر ہوگی۔ میرے پاس ایک بلڈنگ ہے جس میں میں شیئر ہولڈر ہوں، تو اس کا 100% جو انکم ہے وہ اسپتال کو جاتی ہے۔ ایک جو جگہ اور جگہ ہے اس میں بھی 100%۔ تو ہمارا یہ ویژن، یہ سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوشش ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا میری بیوی کے پاس ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیں۔ جو میرے لیے پاسبل ہوگا، میں انشاءاللہ اس سرور فاؤنڈیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گا۔ چوہے صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں اپنے دوستوں سے، UK سے، یورپ سے، اور ادھر آ کے خرچ کرتے ہیں۔ میں نے اس ہاسپٹل کو سرکاری ہاسپٹلوں سے کافی حد تک بہتر دیکھا ہے۔ شیشہ وطنی میں سرور فاؤنڈیشن کے تحت جو ہاسپٹل چل رہا ہے، اس ہاسپٹل کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہم اندر جا کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات ہیں، پیشنٹ سے بھی بات کریں گے اور ہاسپٹل انتظامیہ سے بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ہمارے ساتھ۔ ماں جی اے دسو کہ تسی اس ہسپتال وچ اپنا پیشنٹ جڑا لے کے آئے جے، ہاں جی، اینو کی مسئلہ سی؟ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੱਤ ਇੱਕ ਪਾਉ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਪ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਠੀਕ। एक छोटा सी एक बड़ा सी? छोटा हाँ बड़ा से खब्बा छोटा। ये बेटा है आपका? हाँ जी माशाल्लाह बेटा है। इसको क्या मसला था? 4-5 साल पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो क्या इशू हुआ? इसकी उंगली फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा, तो उंगली 4-5 साल से खराब थी, फ्रैक्चर हुई थी, ठीक नहीं हो रही थी? वो ठीक तो हो रही थी, इधर से नहीं होना था। वो कहने लाहौर लेके जाना पड़ेगा आपको बच्चे को। अच्छा, तो अब हो गया यहाँ पे? हाँ माशाल्लाह हो गया। मुझे आपने सही बतानी, माशाल्लाह आप नेक आदमी, बारिश आदमी है। मुझे तवक्को नहीं है कि जरा बराबर भी आप झूठ बोलें, बिल्कुल नहीं तवक्को। कोई पैसे आपके इस इलाज के ऊपर लगे? नहीं, इंशाल्लाह फ्री हुआ सब कुछ, मुफ्त हुआ है? हाँ जी टोटल? हाँ जी। कुछ दवाई के थोड़े ज्यादा पैसे लगे? 1 रुपया भी नहीं लगा। नाजरीन आगे बढ़ेंगे और कोई बंदा अगर मिलता है तो उससे भी हम बातचीत करेंगे। एक और पेशेंट मोहम्मद अनवर मौजूद हैं। इनका यहाँ पे इलाज हुआ है। इनसे पूछते हैं कि क्या इलाज हुआ, कैसे हुआ, पैसे लगे ना लगे, सर्वर फाउंडेशन ने इसमें क्या किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੱਠੇ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। नाजरीन, ये खाना भी यहाँ पर मरीज़ों को दिया जाता है मुफ्त में। अभी इन्होंने बात की और प्रैक्टिकली हमने देख भी लिया। मैं दिखाना चाहूँगा कि खाने में है क्या। तो ये आपने ये भी बताना है कि खाना ये अभी हमें दिखाने के लिए लाया गया या पहले भी मिलता है? अच्छा जी, ये है चावल हैं, इसके अंदर चिकन भी डाला गया है और बड़े अच्छे चावल लग रहे हैं। और मुझे बताएं कि ये खाना अभी आपको मिल रहा है या हर रोज़ मिलता है? रोज़ मिलता है। रोज़ मिलता है जी, कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चेक करो बोटी जरा सही है या खराब तो नहीं है? सही है, बेहतरीन है। अच्छा, बहुत तो बड़ी मदद की गल होगी कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। रोटी भी? रोटी के नाल सालन की होता है? सालन आलू गोश्त ही मिलता है। आलू गोश्त। इस दौर में गोश्त इतना महंगा है और यहाँ पे अस्पताल में इलाज मालजे के साथ साथ रोटी भी फ्री है, तो बड़ा अच्छा काम है। लोग बड़े मुतमईन हैं और भी लोगों से बात करते हैं। और
जानने की कोशिश करते हैं। चावल वैसे मैं अगर आप इजाज़त दें तो चेक कर लूँ कि चावल की क्वालिटी कैसी है। ये देखते हैं जी कि चावल बना हुआ कैसा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब ज़्यादा मिकदार में चावल बनते हैं तो चावल ठीक भी नहीं होते, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। मेरा जो कि भाई इलाका हाफजाबाद है और हाफजाबाद का चावल बहुत मशहूर है, और ये जो चावल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ये चावल हाफजाबाद के चावल से भी अच्छा है, जो सर्वर फाउंडेशन की वसातत से और उनकी मुआवनत से अस्पताल में इलाज भी हो रहा है और खाना चना भी फ्री मिल रहा है और बड़ा अच्छा खाना है। तो चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। लेकिन मुजफ्फर से बात करेंगे, मैं समझता हूँ इनकी राय यकीनन मोतबर होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने दोनों अस्पतालों को देखा और रोज़ाना आपका काम ये है स्टोरीज़ करना, अस्पतालों को विज़िट करना, हर जगह पे जाना, तो आपकी जो नज़र है उस नज़र से आप किस तरह से देखती हैं कि फाउंडेशन कैसा काम कर रही है, अच्छा बुरा तनकीदी क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हम तो तब तक कोई भी राय नहीं दे सकते जब तक हम मौका खुद विजिट ना करें ना, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो आज मैं इस विज़िट में आपके साथ, हमने रजाना में भी सर्वर फाउंडेशन का हॉस्पिटल विज़िट किया, फिर हम चीचा वतनी में इस वक्त मौजूद हैं। मैंने इस हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटलों से काफ़ी हद तक बेहतर देखा है। सफाई देख लें, इसमें पेशेंट्स की ट्रीटमेंट देख लें, उनको बर वक्त अद्वियात की फराहमी देख लें, फार्मेसीज अंदर मौजूद है, कोई लंबी लंबी कतारें नहीं हैं, कोई जलीलो ख्वार नहीं हो रहे, वो लाइनों में नहीं लगे हुए कि टोकन ले रहे हैं वहाँ से उसके बाद उनको बेड मिल रहे हैं। तो ऐसी फाउंडेशन अगर वाकई ऑनेस्टी से इस तरह के काम पाकिस्तान में करें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम तरक्की की राह पे जो है वो गामजन हो जाएंगे। कोई एक जुमला क्या होगा फाउंडेशन के बारे में? मैं कहूँगी दे आर डूइंग बेस्ट जॉब और अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे। किसी तारफ़ के मुताज नहीं, वकार भाई वकार यूनिस से बात करेंगे। इस सर्वर फाउंडेशन के तहत आपने रजाना का विज़िट भी किया हॉस्पिटल का, अब चीचा वतनी भी हैं, क्या कहेंगे फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? देखिए, मेरा ताल्लुक छोटे इलाके से है, बिहाड़ी से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी छोटे इलाके में जाता हूँ। और चीचा वतनी, कमालिया, रजाना, ये मैंने बहुत अपनी हार्डशिप के जो दिन हैं जो मैंने वो देखे हुए हैं, और क्रिकेट यहाँ खेली भी हुई है। तो सर्वर फाउंडेशन का ऐसे ही जिक्र हुआ था और सर्वर साहब से मुलाकात हो गई, और चौधरी साहब वेरी हम्बल मैन, एज़ वी ऑल नो कि ये जितने सादे और जितने सीधे इंसान हैं, तो उनसे मिलकर एक तो अच्छा फील भी हुआ उनको मिलने से, और एक ऑफ कोर्स उनका ये फाउंडेशन है जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, ऐसा दिल किया कि इसमें ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसमें करना चाहिए। जहाँ तक मैं कर सकूँगा या कर सकता हूँ मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगा। जो मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं इंशाल्लाह इस सर्वर फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए हम हाजिर होंगे। अच्छा, बहुत सारे इदारों के आपने विज़िट भी किया, यकीनन आपकी उम्र एक गुजरी है। सर्वर फाउंडेशन का कंपैरिजन अगर हम करें बाकी फाउंडेशन से, तो अच्छा काम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बट इसको किस लेवल पे देखते हैं? बेहतरीन काम है ख़ास तौर पे शोबा सेहत के अंदर? देखिए, हर फंड रेजर जो होता है ना उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो ये कहना कि ये फ़लानी बड़ी और फ़लानी छोटी है, आई थिंक ये गलत है। जो इस काम में मुलव्वस है, आई थिंक वो बड़ा उम्दा काम कर रहा है, अच्छा काम। इसकी खूबसूरती ये है कि ये छोटे शहर में है और इसमें ना सिर्फ अस्पताल है बल्कि एजुकेशन साइड भी इसको देखी जा रही है, और फ्यूचर में यूनिवर्सिटी का भी सोच रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बड़ा प्लान है, और इस तरीके से चौधरी साहब ने बाहर से आके अपने सारे एसेट्स यहाँ पे लगाकर और इस तरह की फैसिलिटी इन लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और इस तरह का जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट। शेख अब्दुल गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय यकीनन मोतबर है। जानते हैं कि सर्वर फाउंडेशन और इस हॉस्पिटल का सेहत के शोबे में क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, बताएं कि आपकी राय यकीनन मोतबर है, इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और सर्वर फाउंडेशन जो है उसका क्या किरदार है? अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों लाखों मरीज अब तक यहाँ से फैज़याब होते हैं। यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ हार्ट के हमारे 3 स्पेशलिस्ट हैं जो सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी काम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हाफिज़ अमीर अली अवान भी आज मौजूद हैं चीचा वतनी में, हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल में आके क्या देखा, कैसा काम है। चौधरी सर्वर की जो फाउंडेशन है, हाफ साहब आप इतना दूर से सफ़र करके आए, लाहौर से यहाँ पर आए हैं, आखिर कोई तो वजह होगी। क्या काम आपने देखा, कैसा पाया, फाउंडेशन कैसा काम कर रही है अस्पताल में, इलाज मुआवजे के वाले से क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब पिछले
26 साल से पाकिस्तान में चैरिटी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनका रजाना में एक हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखी, फिर उसको बनाया। वो पिछले 21 साल से चल रहा है। ये हॉस्पिटल चीचावतनी में ये भी पिछले 12 साल से इन्होंने टेक ऑफ जब किया, तो उसके बाद इसको भी चला रहे हैं। हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चौधरी साहब की खूबसूरती ये है कि ये बाहर से पैसा लेके आते हैं अपने दोस्तों से, यूके से, यूरोप से, और इधर आके खर्च करते हैं। लोग इधर से इतने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, चौधरी सरवर साहब जैसे लोगों को, ताकि और लोगों को भी अपने अपने इलाके में अच्छे काम की तौफीक हो सके। चौधरी सरवर ने जो काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के साथ एक तिजारत है। सरवर फाउंडेशन के रूह रवां चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने रजाना में भी विज़िट किया और अब चीचावतनी भी हॉस्पिटल विज़िट किया है। हम मुतमईन हैं। अब मुझे बताएं सर कि इतना ज़्यादा हमने जो रश देखा है मरीज़ों का, मरीज़ कहते हैं हमें खाना भी मिल रहा है, हमारा इलाज मुआवजा भी मुफ्त हो रहा है, क्या आपके पास हिकमत अमली ऐसी है कि लोग बड़े मुतमईन हैं सर? देखिए जी, मैंने जब ये हेल्थ केयर 2004 में शुरू की थी, तो मैं अपने तमाम जो मेरे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, इवन हमारे स्वीपर हैं, हमारे गार्ड्स हैं, तो उनको बैठा के मैं एक ही बात करता हूँ कि जब कोई भी मरीज़ आपके पास आए तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। जो आपने अहमियत और केयर अपनी फैमिली को देनी है, वो अहमियत आप इन बच्चों को देंगे, इन अपने मरीज़ों को देंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा, आपकी जो है बच्चों की सेहतयाबी भी लोगों की बेहतर होगी। तो ये जो पेशेंट केयर है, इस पे हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। दूसरा, जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उससे पूछते नहीं कि तुम बिल कहाँ से दोगे या बिल पहले हमारे पास जमा करवाओ। हम कहते हैं पहले इसका इलाज कर लो, जो डिज़र्व है उसको हम फ्री करेंगे, जो 50% पे कर सकता है वो 50% है। लेकिन हमारे अस्पताल में कोई मरीज़ इसलिए वापस नहीं करते, इनको इजाज़त ही नहीं है किसी को वापस कर दें कि उसके पास पैसे नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, और तीसरी बात जो ख़ास कर बात है कि हमारे अस्पतालों में एक कस्टम और प्रैक्टिस है कि जब कोई मरीज़ वो देखते हैं कब इसकी 10% बचने के चांस हैं, तो उनको कहते हैं कि आप भी घर ले जाओ, रिश्तेदारों से मिल लो। वो चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो कम हो। मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उल्ट हैं। मैंने इनसे कहा है कि अगर 5% भी मरीज़ के बचने के चांस हैं तो लेट हिम डाई विद कंफर्ट इन अवर हॉस्पिटल। उनको आपने हस्पताल से बाहर नहीं निकालना। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है शफा जो है हमारे अस्पतालों में दी है। दूसरे अस्पताल कहते हैं कि इस मरीज़ में नहीं बचना, हमारे अस्पताल में आते हैं तो होते हैं। अभी आप एक मरीज़ देख लें, कराची से आए हैं, वो कहते हैं हमने 2 ऑपरेशन कराए, 9 लाख रुपया भी दिया, कामयाब नहीं हुए। यहाँ आया, मुफ्त हुआ, मुफ्त खाना दिया और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। अच्छा, एक जो जुमला बोला जाता है छोटे इलाके जो पसमानदा होते हैं वहाँ पर, कि वही बात जो आपने कही कि जब पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता मौत के करीब देखता है मरीज़, तो वो कहता है जी ले जाएं इसको। एक जुमला बोला जाता है इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, कि अपने ऊपर मुद्दा नहीं डालना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। नहीं, अब बात उल्ट होगी। अब लाहौर वाले और फैसलाबाद भी कहते हैं कि घर ले जाओ, इसमें बचना नहीं है। अच्छा, हर एक का अपना तरीका है कि कैसे मरीज़ को बाहर निकालना है। सही है। वो जो बात आपने की ना कि यहाँ से मरीज़ को आखिरी दम तक बाहर नहीं निकाला जाता, कोशिश की जाती है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और दे देता है अल्लाह ताला। अच्छा, एक सर बड़ी अहम बात है, मैं सवाल जानना चाहूँगा जवाब उसका, कि सर इसका जो बजट है, फाउंडेशन जो ओवरऑल कर रही है काम, कितने करोड़ का या कितना बजट आप अगर आप बताना मुनासिब समझें? देखें जी, बात ये है कि हमारी माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमें हमारे डोनर, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली के मेंबर, हम खुद जो हैं वो इतना कुछ कर लेते हैं कि हम कभी भी फंड्स में शॉर्टेज नहीं होती। अगर हो भी जाए
تو میں جب بزی ہوتا تھا یہاں پر تو شارٹیج ہو جاتی تھی، تو بچوں کو کہتا تھا کہ بھئی اتنے پیسے ادھر اکاؤنٹ میں سرور فاؤنڈیشن کے جمع کروا دو، تو اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، لوگ تو ظاہر ہے مدد کرتے ہیں، جہاں کام ہو رہا ہے لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو سر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بھی خاص کرم ہے، تو آپ کتنی اماؤنٹ، کتنی پرسنٹیج آپ نے مختص کی ہوئی ہے کہ فاؤنڈیشن پہ لگانی ہے؟ دیکھیں اب یہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو بھی مثال کے طور پر میرے پاس ایک بلڈنگ ہے جس میں شیئر ہولڈر ہوں، تو اس کا 100% جو انکم ہے وہ ہسپتال کو جاتی ہے، ایک جو جگہ اور جگہ ہے اس میں بھی 100%۔ تو ہمارا یہ ویژن، یہ سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوشش ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا میری بیوی کے پاس ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیں، تو اگر نہ بھی کر سکے تو بعد میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس اللہ نے جو دیا ہے، بچوں کے پاس بہت ہے، ان کا کاروبار بھی بڑا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے سر کہ ہوتا یہ عام طور پر کہ جیسے آپ جیسے نیک دل لوگ پوری زندگی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک نظام ہے کہ دنیا سے جانا بھی ہے، تو بعد میں وہ سسٹم نہیں چلتا۔ آپ نے آیا کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب ایسا ہو تو بعد میں کیا بنے؟ میری سب سے اس وقت پرائرٹی جو ہے، فکر یہی ہے کہ یہ نظام جو ہے، چونکہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں اور میری مسز جو ہیں لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ماشاءاللہ ہماری ایک بہت اچھی پاورفل آرگنائزیشن ہے، شیخ صاحب ہیں، شیخ عابد صاحب ہیں، راؤ صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں تو ان کو اگر پیسوں کی میں یہ گارنٹی کر کے جاؤں گا کہ پیسے میرے مرنے کے بعد بھی ان کو ملیں گے، اتنا میں کر کے ضرور جاؤں گا کہ میرے بعد ان کو پیسوں کی شارٹیج نہیں ہوگی، میرے بچے نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بچوں کو جانتے ہیں، اگر یہ ان کو فون کریں گے کتنے ہمیں ضرورت ہے تو مجھے یقین ہے وہ بھیجیں گے، لیکن میں خود بھی اتنا کر جاؤں گا کہ ان کو پیسے مینجمنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ میں سٹرکچر ضرور بنا رہا ہوں کہ مینجمنٹ سٹرکچر جس طریقہ سے یہاں پر ہے اس طریقہ سے توبہ ٹیکسنگ میں بھی ہونا چاہیے، اسکول اور کالج میں بھی ہماری بہت زبردست آرگنائزیشن ہے۔ تو اب ہمارا جو مین ٹاسک ہے، چونکہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت زیادہ فنڈز کی بھی ضرورت ہے۔ صرف زمین جو ہے ہم نے 50 کروڑ روپے میں خریدی ہے۔ یہ یونیورسٹی جو سب کہاں پہ بن رہی ہے؟ یہ جی رجحانہ میں ہی بن رہی ہے، جہاں سے آپ دیکھا ہے ہسپتال، اس کے ساتھ ہی موٹر وے کے نزدیک 10 ایکڑ جگہ ہم نے۔ اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں، یہ ہے کہ ہمارا اسکول اور جو کالج ہے وہاں پر جو بچے جب ایف اے ایف ایس سی کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں یار ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں تو آپ ادھر چل جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جب تک آپ 100% خرچہ ہمارا نہیں دیں گے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں تقریباً کم از کم 2-3 ملین کے جو تحصیل پیر محل میں، تحصیل کمالیہ میں، مرید والا میں، توبہ ٹیکسنگ میں، تو وہ لوکل وہاں پر اپنی تعلیم جو ہے وہ وہاں پر پڑھ سکیں گے، تو اس لیے یونیورسٹی بنانے کا سوچا ہے۔ جو صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جانا چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا کہ کیا کہاں پر کیا کام ہو رہا ہے اور آگے فیوچر میں یونیورسٹی بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جو ادارے ہیں سرور فاؤنڈیشن جیسے ادارے، یہ باقی اداروں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ باقی ادارے بھی اگر تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں تو پاکستان کے اندر جو محرومی ہے، جو ایسے طبقات ہیں جو صحت کی سہولیات، جو تعلیم کی سہولیات اور دیگر سہولیات جو بنیادی ہیں وہ حاصل کر سکیں گے اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو سارے اداروں کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، جیسا میں نے لفظ بولا کہ یہ مشعل راہ ہے۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔